વિજયદશમી બાલકૃષ્ણ પ્રભુ વૈષ્ણવગણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ વૈષ્ણવગણ। આજના દિવસની ફાગણના દિવસોની વૈષ્ણવ ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ વૈષ્ણવો। તો होली खेलोगी श्याम संग जाए, बड़े भाग पे फागण आयो रे। तो फागणना दिवसोनी फागण महीनानो एक अलग ज महत्व है वैष्णव। अने फागणना 40 दिवस, आम तो एक नहीं बे नहीं 40 दिवस है, पण 40 दिवसों क्या पलक झपकता खत्म थई जाए छे वैष्णव, खबर नहीं पड़ती एवो रंग फागणना दिवसोमां जामे छे। तो फागणना दिवसोनुं शुं महत्व है वैष्णव? तो फागणना दिवसोमां आपणे वैष्णवो जे व्रजांगनाओ, जे गोपीओ, जे आपणे पुष्टि मार्गमां वैष्णवो फागणना दिवसोमां आपणे ठाकुरजीने चरणारविंद उपर वस्त्र ढाकी दઈએ છીએ અને ચરણારવિંદ ઉપર આપણે ચોવા ચંદન ગુલાલ અબીલથી ખેલ કરાવીએ છીએ। અને ખેલના દિવસોનો આખો સેવા પ્રકાર એ પણ બધું અને ભાવ ભાવના બધું આપણે સંક્ષિપ્તમાં લઈએ તો સેવાના દિવસોમાં આપણે વસંત પંચમીના દિવસથી વિદ્યા પાઠના એક દિવસ પહેલા સુધી 40 દિવસ વૈષ્ણવો ખેલના દિવસો હોય છે। પણ એમાંય પાછું હોળી દાંડાના પહેલા સુધી વૈષ્ણવો ગુલાલ અબીલ ચોવા ચંદનથી ખાલી ખેલે। હોળી દાંડા પછી પાછો ધીમે ધીમે સેવા પ્રકાર થોડો चेंज थाय। तो ई बधुं यूट्यूब विडियो में कवर करूँ एक विडियो पॉसिबल नहीं, तेथी करीने वैष्णवो मैं आप सर्वे वैष्णवों माटे आ पुस्तक आम तो 2 वर्षथी लखेली छे, सेवा रस दर्शन 40 दिवस है एनो शू सेवा प्रकार है अने पूरे साल के जो दिन है 365 दिन, तो कया उत्सव में कई सेवा अपने जो वैष्णव दरेक घरनी अलग अलग प्रणालिका होय पण ई हवेली सेवानो क्रम होय। ज्यारे आ पुस्तक में आखो गृह सेवाना उपर बेसिक तो मुख्य सेवाक्रम आमां आवरी लेवामां आव्यो छे। तो आ पुस्तक सेवा रस दर्शन अगर आप बधा अहींया जे हेन्ड टू हेन्ड पण जो कोई पण वैष्णवने लीलाबेन जेमणे पधरामणी करावी छे अने ई मारा कीर्तन ग्रुपमां पण छे, चलो रे वृंदावन वसंत आयो। अने ई ग्रुपमां हमणां अमे ઝૂમ मीटिंगमां वीकमां एकवार समय वैष्णव पण पोतानो किंमती समय निकाळे छे। अमे पण समय निकाळीने सन्डे टू सन्डे ઝૂમ मीटिंग आपीए छे, कीर्तन शीखवाडीए छे। तेनी अंदर बधा वैष्णव खूब ज सुंदर रीते कोशिश करीने डेडिकेशनथी कीर्तन शीखी रह्या छे। वसंत राग आवो सुंदर राग जे वसंत रागनो राजा छे जे वसंत, ई राग अमे अर्धो कीर्तन शीखी लीधुं छे। तो ई ग्रुपमां ईलाबेन छे अने एमणे पछी प्रेरणा थईने पधरामणी करावी अने एमना थकी आपणे सर्वे बधा जूनागढ़ना આપણને આનંદ સાથે મળ્યો આજે। તો એમણે આ પુસ્તક લીધી છે। તો આપ લોકોને પણ કોઈને પણ જે પુષ્ટાવેલા પ્રભુની સેવા કરતા હો અને તો મિશ્રી ભોગની શું તો સખડી ભોગની બધો જ સેવાક્રમ આમાં 1 to 1 આમાં છે। જેને જો લેવી હોય આ પુસ્તક તો તમે લોકો જરૂર મારો કોન્ટેક્ટ નંબર મીલાબેન પાસેથી લઈ અને મેળવી શકો છો। અને બાકી હમણાં હેન્ડ ટુ હેન્ડ જોઈતી હોય તોય થોડી પુસ્તકો હમણાં અહીંયા સાથે લઈને જ આવી છું વૈષ્ણવ। तो फागणना दिवसों होली दांडा पछी चंदननी पिचकारी, केसुडानी पिचकारी पहले दिवसथी स्टार्ट नहीं थती। पहले दिवसथी सूक्ष्म खेल होय, गुलाल अबील चोवा चंदन। पछी सेवाक्रम में केसुडो रोज आवे, केसुडानी पिचकारी भराय, चंदननी पिचकारी भराय, चंदन केसरनी। અને ફેટ આવે, ફેટ એટલે આપણે આ છે ને આ બાંધ્યું હોય ને આમ એની અંદર ઠાકોરજીને આપણે હવે આજે તમને મારે આટલું જ ઉડાડવો હોય તો અહીંયા સુધી તો અહીંયા આટલા હાથથી, પણ હાથ ફેટ સુધી ન જાય તો ફેટથી આપણે આમ કરીને ઉડાડી શકીએ। તો એથી કરીને ફેટ આવે એ ભાવથી ગુલાલ અબીલની। અને તે સિવાય પછી પીછવઈ હોય ને જે પાછળ પીછવઈ, એ પીછવઈમાં ખૂબ જ સુંદર ચિત્રકારી હાથથી જ ગુલાલથી सुंदर सुंदर जे पण भाव भावना होय ए बधी भाव भावनानी सुंदर चित्रकारी खुला दर्शन में थाय, खूब आनंद आवे एनो।
એની અંદર આપણે કોઈ પણ સુંદર ચિત્રકારી, ક્યારેક રાધા શ્યામ કૃષ્ણ, ક્યારેક અંગૂરનો બંગલો, ક્યારેક ગુલાલ કુંડ, એવા સુંદર સુંદર ચિત્રકારી થાય. અને હોળી દાંડા પછી ફગવા પણ આવે. અમુક ઘરોમાં ખાલી ફગવા આવે જે ધાણી ચણા હોય, અમુક ઘરમાં પ્રાય ખાસ કરીને સુરત ઘરમાં જે આખો થાળ આવે. એ ઠાકોરજીની ખેલતા ખેલતા પ્રભુને ભૂખ લાગે કે થાકી જાય અને સાથે સાથે આનંદ કરવા માટે પ્રભુ લીલો મેવો, સૂકો મેવો, કંઈક સુંદર તર સામગ્રી, જેમ કે આપણે સામગ્રીના નામ તો ન લેવાય, બહુ સુંદર તર સામગ્રી, કંઈક સુંદર સૂકી સામગ્રી, બધું ભૂતઘરમાં પણ, સખડી અનસખડીમાં નહીં, એ રીતનો આખો થાળ આવે. તો એ રીતે ક્રમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વધે 40 દિવસમાં. હોળી દાંડા પછી ફૂલની છડી પણ આવે. ફૂલની છડી જે હોય એનો એ ભાવ હોય કે આપણે જે ઠાકોરજી સ્વામીજી વ્રજના લલ્લાઓ ખેલે તો એ છડીથી પોતાને બચાવે. જેમ કે જેવો રંગ નાખવા જાય છે આમ, તો એ છડીથી એમની જે ફેટ હોય એને ઉડાડી દે. તો એ ભાવથી પણ છડી પાછી કઈ છડી ચાંદીની કે સોનાની કે કોઈ બીજી વસ્તુની, મોતીની ને રત્નકારી છડી નથી. છડી ફૂલની છે. કેમ કે આમ ભલે શ્યામથી બચવું છે પણ શ્યામ ખુદ ફૂલ જેવા છે, એટલે એમની સાથે બચવા માટે ફૂલની છડીથી ખેલવાનું છે. તો એવા બધા આ સુંદર ભાવ છે. અને આપણે 40 દિવસ ચરનારવિંદ પર સફેદ વસ્ત્ર ઢાંકી અને એના પર આપણે ચોવા ચંદનથી ઠાકોરજીને ખેલાવીએ છીએ. તો એનો તો ભાવ આપને ખ્યાલ જ હશે આમ તો, પણ એનો ભાવનો શું ભાવ છે? એનો ભાવ એ છે કે આપણે 40 દિવસ ચરનારવિંદ આપણે દાસત્વ, આપણે દાસ્ય ભાવથી સેવા કરીએ છીએ. બરાબર છે, દાસ્ય ભાવથી કરીએ છીએ, સાથે વાત્સલ્ય ભાવથી કરીએ છીએ. વાત્સલ્ય ભાવ બાલ ભાવ. વાત્સલ્ય ભાવ મતલબ કે યશોદોત્સંગ લાલી, યશોદાજીના જે પ્રભુ છે વ્રજના અધિપતિ, તો આપણે ઘરે પણ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કાનીથી એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ આપણે એક બાળકને જેમ સાચવીએ, એક બાળકનું જેમ આપણે એમને ઉઠવાનું, એમને ખવડાવવાનું, પીવડાવવાનું, નવડાવવાનું, જે આપણે એક બાળકને કેમ એને નખરા હોય, નાસો નખરા હોય, એને આપણે મનાવવું પડે, એના પસંદનું બનાવવું પડે. જેમ આપણે બાળકને નાની નાની વસ્તુનું ધ્યાન રાખીએ, એમ આપણે બાલભાવથી સેવા કરીએ છીએ. તો વાત્સલ્ય ભાવથી આપણે સેવા કરવાની છે, પણ આપણું દાસત્વ, આપણે મહાત્મ્ય જ્ઞાન ભૂલવાનું નથી કે આપણે પ્રભુના દાસ છીએ. તો દાસ શબ્દનો મતલબ બહુ જ ગૂઢ છે વૈષ્ણવો. આજે આપ લોકોને હું પૂછીશ કે દાસ શબ્દનો આપ લોકો શું અર્થ જાણો છો? સૌથી પહેલાં આજના વચનામૃતનો ખાસ આ જ સાર છે. આજ આપણે જાણવાનું છે કે બ્રહ્મ સંબંધ આપણે જ્યારે લઈએ છીએ તો પંચાક્ષર મંત્રની આખો મંત્ર તો બોલવો અલાઉ નથી, છતાં પણ લાસ્ટની જે 3 લીટી મેન છે, દાસો હમ કૃષ્ણ તવાસ્મી, હે કૃષ્ણ હું આપનો દાસ છું, હું આપનો દાસ છું, હું આપનો દાસ છું. તો દાસ ભાવ છે, દાસ્ય ભાવ, એ જ મેન બેઝ છે પુષ્ટિ માર્ગનો. તો એ દાસ ભાવનો શું ભાવ છે હું આપ લોકોને પૂછીશ, કોને શું સમજ છે, પછી હું આપ લોકોને સમજાવીશ. અને એનાથી નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે લોકોની કોઈ કરતાં કોઈ સ્ટેજ કે કોઈ કક્ષા નથી વૈષ્ણવો કે આપણે સખ્ય ભાવની સ્ટેજ પર પહોંચી શકીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો દાસ્ય ભાવની સ્ટેજમાં પણ આપણે પહોંચવાની કેટેગરી નથી. આ તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કાનીથી, એમની કૃપાથી આપણને ઠાકોરજી નાથોના નાથ જાકો બ્રહ્મ રટત વિષ્ણુ રટત, બ્રહ્મ રટત, નારદ શિવ શેષ રટત, જે લોકોને બ્રહ્માજી પણ નથી પામી શક્યા, જે દેવતાઓ પણ જેને તરસે છે, એ નાથોના નાથ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપણે વૈષ્ણવોને આટલી ઇઝીલી પ્રાપ્ત છે, તો આપણે એને રમતા લાલા બનાવી દીધા છે. ઇટ્સ રિયલી ટ્રેજેડી. અમે તો રમતા લાલાની સેવા કરીએ છીએ.
बराबर है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी है। और मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रभु पूछता हूँ, ऐसा आप लोगों को आग्रह करती थी अपने सभी वचनामृत में, पर अब मैंने वो छोड़ दिया है, क्योंकि सच में जो अधिकारी होगा वो बिल्कुल पुष्टाएगा और वो बिल्कुल प्रभु की सेवा करेगा। और पुष्टि प्रभु की सेवा कोई हलवा नहीं है, क्योंकि पुष्टि प्रभु की सेवा आप लोग पुष्टाने के बाद फिर आप लोग रमता लाला की जैसे सेवा करो, थोड़े दिन आपका भाव इतना डेवलप होता है, इतनी सारी आज्ञा ले लेते हैं, जैसे वो जी हमको इसकी आज्ञा दे दीजिए, उसकी आज्ञा दे दीजिए, ये भी करना है, वो भी करना है। 4 दिन 5वें दिन जो अगर आप लोग के नहीं जैसे हवे नहीं पहुँचा दूँ, मैं कभी अब आज्ञा भी सोच समझ के देती हूँ और पुष्टाने की भी मैं कभी किसी को आग्रह नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि रमता लाला जैसा कोई चीज़ हमारे पुष्टि मार्ग में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर फिर भी आप लोग जो भी है, जैसे भी है, एटलीस्ट आप सेवा का अनुसंधान तो करते हो मन में, बराबर है। तो એટલે માટે વૈષ્ણવો આપણે મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કહાનીથી આપણે નાથોના નાથ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની બાળ ભાવથી આપણો બાળક છે એ રીતે આપણે સેવા કરીએ છીએ રીત અને પ્રીતથી, बराबर છે। પણ આપણે સેવા તો बड़े कर गए, अपन तो लकीर पीट रहे हैं, ऐसा हरिराय जी आज्ञा कर गए हैं। इतनी दीनता हरिराय जी में कि सेवा तो बड़े कर गए, हम तो लकीर पीट रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? सेवा तो बड़े कर गए, हम तो लकीर पीट रहे हैं, मतलब हम तो सिर्फ उसकी कॉपी मार रहे हैं। लकीर पीट रहे मतलब हम तो सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हैं। आप किसी पुस्तक में पढ़ के आपको कुछ पता आता, कुछ पता है नहीं क्या लिखा है। वो पोपट बोलता है ना, आप बोलो राधे राधे, पोपट बोलता है राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण, तो पोपट बोलता है जय श्री कृष्ण। अब उसको पोपट को नहीं पता है कि राधे शब्द का क्या महत्व है, क्या है राधे, वो पोपट को पता नहीं है। पर उसको तो तुम बोलोगे तो वो रट्टू पोपट की जैसे रट्टा मार देता है। उसी तरह हम तो सिर्फ जी मिश्री भोग बाबा श्री मिश्री भोग की सेवा करिए એટલે આપણે મિશ્રી ધર દઈએ, દૂધ ધર दिया, बराबर है। अपन लाला ने जगाई दो, रमता लाला ने પછી आ કરી दो, बराबर। अपन ऐसे रीत का रायता करते हैं, इसको कॉफी मारना कहते हैं। अपन को पता नहीं है कि न कुछ अनुसंधान है, न कुछ भाव है, नहीं है, क्या करना है नहीं खबर है, करना है, इसको कहते हैं लकीर पीटना। तो हरिराय जी ने आज्ञा करी कि सेवा तो बड़े कर गए, हम तो लकीर पीट रहे हैं। पर मैं ये कहूँगी कि हमको तो लकीर पीटना भी नहीं आता है, कॉपी मारना भी कोई इजी वस्तु नहीं है। पिक्चर में आप लोग देखते हो ना, जैसे वो पहले श्रीदेवी आई थी हीरोइन, बराबर है, तो वो टॉप की हीरोइन थी, सबसे ऊपर उसका। तो माधुरी दीक्षित की उसकी इंडिविजुअल खुद की कोई आइडेंटिटी, खुद की अभिनय करना चाहिए ना उसको। उसके बदले उसको भी टॉप पे आना था, तो वो पहले श्रीदेवी की एक्टिंग करती, उसके जैसी। आपको किसी के जैसी कॉपी मारना भी इजी नहीं है। तो सेवा तो बड़े करके हम तो लकीर पीट रहे हैं, हम तो लकीर भी नहीं पीट रहे हैं। हमारी तो लकीर पीटने की भी न कैपेसिटी है न कैटेगरी है। हम लोग कॉपी मारने में भी कितने गोटा गड़बड़ करते होंगे रोज की सेवा में भी, वो हमको पता नहीं है। फिर भी महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकारते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगल बगल कुछ भी जानेंगे कि भाई ठाकुर जी तो सेवा लेवाना है, આપણે કાંઈ भी કરી લઈએ। ઘરવાળાને કાંઈ તકલીફ ના કરવી જોઈએ। ઘરવાળાને ગરમ રોટલી જોઈએ એટલે ગરમ રોટલી જ દેવાની આવે। આજે મારે લગ્નમાં જવાનું છે, આજે મારે મહેમાન આવવાના છે, આજે મારે ઠાकुरજીને જે અંસખડીની આજ્ञा तो લીધી છે, પણ આજે હું આમ કરી લઉં તો ચાલશે, मुझे ये ચાલશે फावશે गमશે तो इतनी नफरत है। मुझे कोई वैष्णव पूछता है ने जे આજે ખાલી મિશ્રીની સાથે અંસખડી સામગ્રીને બદલે ખાલી મિશ્રી ધરી દઉં તો ચાલશે, આજ્ञा तो લીધી છે પણ ખાલી આજે આમ કરી દઉં તો ચાલશે। अरे भाई, तो फिर तुमने आगे नेक्स्ट स्टेप लिया यार। તમે તમારા ઘરવાળાને પણ રોટલીને બદલે કાલની ઠંડી રોટલી ટાઢી રોટલી ધરી મૂકી દેશો તો ચાલશે? તો અમને ઘરવાળો બહાર કાઢી મૂકે છે। तो फिर क्यों ठाकुर जी को हमने मजाक समझ के रखा है? वैष्णव ये क्या, ये ऐसे नहीं करो। मैं सेवा सिखाने से पहले क्या तो सेवा की पुस्तक में रीत बताई, क्या तो मैं आप लोगों को YouTube में सिखाती हूँ। ये कुछ मुझे भी नहीं आता है, ये सब मैं भी आप लोगों को जो मैंने बचपन से अम्मा को देखा
बचपन से जो हमने किया, बराबर है। आज एक आपको बताऊं, मैंने सेवा अलग से नहीं सीखी है। आज आपको एक बात बताऊं, ये मुंबई के जो मुंबई के जनरेशन है बच्चे, वो बचपन से ऐसे पटर पटर इंग्लिश कैसे बोलते हैं। What are you doing? Why can't you understand? I can't believe. ये सब इन लोगों के मुंह पे ही क्यों लगा रखा है। मेरे खुद लाला इंग्लिश में ही पटर पटर करते हैं, बराबर है। बाबा स्ट्रीट इंग्लिश, दोनों बाप बेटा इंग्लिश में ही बोलते हैं। मेरे को बोलने तो पता नहीं क्या बोल रहे, उन लोगों को पता नहीं। अपन सुने तो कुछ मगजमारी हो ना, दोनों को इंग्लिश में ही बातें करने दो, बराबर है। तो उन लोगों को वो इंग्लिश इतनी ज्यादा क्यों रमी हुई होती है, क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश ही सीखते हैं। इनसे ही अलग से कोई सेवा नहीं सीखी है। हम लोगों को बचपन से ही भाई तुमको चरण स्पर्श करे बिना सकड़ी मुंह में नहीं रखना है, पाठ किए बिना तुमको भोजन नहीं करना है। ये हमारे लाइफस्टाइल में आया हुआ है। तो मैं तो आप लोगों को वही बता रही हूँ। मैं तो क्या सेवा करूँगी, ये क्या सिखाऊंगी। मैंने तो बस जो मेरे रहन सहन में ही जो आया हुआ है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी तो मुझे भी कुछ सेवा करना का कुछ अता पता का, ना मेरी भी कैटेगरी है ना मेरी भी कैपेसिटी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को तो कुछ भी हम जो भी है वो कुछ भी हम कर लें। अतिशय हमको वैसे भी नहीं लेना है लाइटली, और अतिशय हमें ऐसा अपराध पड़े। आजकल देखो इनको मैंने कितना ज़्यादा कल वो हिम्मत बंधाई कि आप जे आ करવું પડશે, જે ઓલું કરવું પડશે, જે हमने आ वस्तुનો डर लगे, जे अपराध થઈ જાય। तो अभी आप कुछ वैष्णव को इतना भाव होता है, फिर भी पुष्टाने से डरते हैं, फिर भी पधरावनी कराने से डरते हैं। नो डाउट कुछ ऐसा इम्प्रेशन हो गई हो, बराबर है। मैंने इनको कहा कशु नहीं कर, आ करવું तो પડશે, ओलू करવું પડશે। मैंने कहा आनंद करવો પડશે, बीजू कशु करो के नहीं करो, मैंने कहा आनंद करने के लिए हमें मिलना है। कोई चीज की आपको ऐसे मन में कि नहीं जी का ये अपराध हो जाएगा, वो इतना ज्यादा भी अपराध का हुआ मत रखिए वैष्णव। ठाकुर जी और महाप्रभु जी इतने कृपालु है कि अपने अपराध 100 अपराध क्षमा करते हैं, एक अपराध तो दूर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कुछ भी अगर जाने दे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपराध का इतना हवा कर लो कि आप लोग कुछ करो ही ना। अपना जीवन का उद्धार कैसे होगा, नहीं तो आप कुछ करोगे ही नहीं। ये ऐसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे मेरे, मैंने आप लोग स्विमिंग पूल में घुसका लगाओगे तभी तो तरना सीखोगे, और जब तरना सीखोगे तभी तो तरोगे। तो हमें इस भवसागर से तरना है तो थोड़ी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना वैष्णव। तो ठीक है वैष्णव, यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि हम तो लकीर भी नहीं खींच सक रहे हैं, फिर भी हमें जैसे कीड़ी 10 बार गिरती है फिर से चढ़ती है, 10 बार गिरती है, वैसे हमें कोशिश नहीं छोड़नी है, हमें सीखना है। मैं सिखाती हूँ, दूसरे वल्लभ कुल सिखाते हैं, आपको ठाकुर जी जो प्रेरणा करते हैं उससे सीखना है और फिर उसको मेंटेन रखना है, बराबर है वैष्णव। तो दासत्व का क्या भाव है और सख्य भाव। 40 दिन सख्य भाव होता है, 40 दिन सख्य भाव जो है वो माधुर्य भाव, सख्य भाव नहीं माधुर्य भाव, माधुर्य भाव, गोपियों का माधुर्य भाव था। माधुर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, सख्य भाव का क्या अर्थ होता है, वो तो बहुत पहले दास भाव का आप बताइए। दास शब्द का क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा। दास्य भाव का, दास शब्द का क्या अर्थ होता है। एक तो ये वैष्णव के टिपिकल पर्टिकुलर मुझको सेंटेंस तो और मुझे सच्ची को हमें तो और भी पाका घड़े काठा ना चढ़े, हमें तो कोरी पार्टी छे, પછી और भी कितने सारे हैं आप लोगों के। ऐसे नहीं कोरी पार्टी कोई नहीं, अपने अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ होता है, आप अंदर से जानने की कोशिश करो, बराबर है। कुछ न कुछ आप बताओ क्या अर्थ होता है दास शब्द का। हे कृष्ण हूँ आपका दास, इस शब्द का अर्थ, दासत्व का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा। आप बताएंगे, आप बताएंगे, बताइए आप बताइए। हाँ दास ना दास, हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर।
दास के भी दास। देखिए उन्होंने जो भी एक सेंटेंस भी, मेरे को ठाकुर जी के ऊपर से फेस रीडिंग पे मुझे पता चल जाता है कि मैं किसको पॉइंट आउट करूं, बराबर। दास ना भी दास, हम तो हाँ, दास ना भी दास, हम तो दास नहीं, हम तो दास के भी दास। जैसे हम वैष्णव जो हो गए 252-84 वैष्णव। देखिए वैष्णव, ये पुस्तक की भेंट है ना, मैंने 252 रखी है। क्यों? क्योंकि वो दास जो 252 वैष्णव सेवक हो गए, उनकी आड़ी से हमको कुछ सेवा आवे। मुश्किल ये है कि तो भी सब जो भी भेंट करते भी है ना, तो 251 करते हैं। 1 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करने से कितना महत्व बढ़ जाएगा ना, वो आप लोग नहीं समझ रहे हो, बराबर है। जैसे 200 रुपये करो और 251 करो, 250 करो और 251 करो, क्या फर्क? 1 रुपये का अर्थ है ना, 101, 111, वैसे 1 रुपये का कुछ महत्व है ना, वैसे ही 1 में 1 और मिला दोगे तो 1 और 1 11, और 252 का क्या महत्व है, वो तो बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी वैष्णव 252 नहीं और 251 भेंट करते हैं। और इसमें तो खुद जिन्होंने बात छुपाई ना, कितनी 3 बार प्रूफ रीडिंग करी मैंने, फिर भी उन्होंने भी इसके अंदर भेंट की नौछावर 251 ही लिख दी है। खैर, तो दास नहीं पर दास का भी दास, तो सुनियो तो सही पर समझियो नहीं। तो दमला सो अमला, तो दामोदर दास हंसानी, कृष्णदास मेघन और चाचा हरिवंश जी, दास लो पर दास कैसे? हमें चाचा हरिवंश जी को फॉलो करना है। वो लगा कि मैं इनको फॉलो क्यों करूं, मैं खुद ही श्री कृष्ण शरणम बोल लेता हूँ ना, तो मैं भी नहीं डूबूंगा। जैसे ही उनको फॉलो करने के बदले खुद श्री कृष्ण शरणम बोला, सीधा डूब गया। उनको तो वो सिद्ध था मंत्र, उनको वो मंत्र का महत्व पता था, उनके तो रोम रोम में वो मंत्र था। वो तो सो जाते थे फिर भी वो मंत्र उनके रोम रोम में से बोलता था। उनका सबकॉन्शियस माइंड में तो पाठ कंटिन्यूस चालू ही रहते थे। तो उसको लगा ये बोल रहे तो मैं भी बोल देता हूँ, क्या हो गया। तो दास का मतलब होता है कि हम जो है अभी हमारी दासत्व में भी लास्ट में लाइन में दास है, दासो हम कृष्ण तवास, ठीक है, हम दास की लाइन में तो आ गए। ये भी बहुत बड़ी बात है, सच्ची की लाइन में तो बहुत दूर की बात है, दास की लाइन में आए हो, बहुत लास्ट वाली लाइन में हो। वीजा लेने हो तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है, फर्स्ट रो में नहीं हो, दास की रो में भी बहुत पीछे खड़े हो। अभी दास की भी दास बनो, उसके दास के भी दास बनो, तब दास की फर्स्ट रो में आओगे। दास के दास कैसे बनोगे? दास का दास क्या करता है? अच्छा, आ तो रोज આવી રીતે કરે છે, अभी मेरे को भी ऐसे सीखना है और मेरे को भी ऐसे करना है। मेरे को भी ठाकुर जी की सेवा में 10 मिनट भले करूँ, पर 10 मिनट के दरमियान मेरे को ऐसे ठाकुर जी को नित्य लीला गा के सेवा करना है। तो नित्य लीला प्रातः स्मरण उठी के व्रज बाला, गावत मंगल गीत रसाला, ये गाते गाते मैं सेवा करूंगी। मैं ऐसे ही सेवा करती हूँ, मैं ये नित्य लीला गाते गाते सेवा करूंगी तो ब्रज भक्तों की आड़ी से ठाकुर जी मेरी सेवा तुरंत स्वीकारेंगे। तो दास के दास को फॉलो करिए। तो आपने बहुत सुंदर कहा, भले एक लिपि में, जैसे ही आपको अंदर से प्रेरणा जो भी हुई। अभी कौन बताएगा? दास में, हे कृष्ण में आपका दास हूँ। अब छोड़िए, ऐसे डरो मत आप लोग, अब ऐसे छोड़ो। अब साधारण आप ऐसे सोचो कि दास शब्दનો આપણે પબ્લિક લૌકિકમાં આપણે પૂછીએ, તમને હું પૂછું રાજા શબ્દનો શું અર્થ થાય? પુષ્ટિ માર્ગમાં કે બહુજી પૂછે છે એવું જવા દો, હું તમને પૂછું રાજા શબ્દનો શું અર્થ થાય, તો તમને એનો અર્થ ખબર હોય ને। હું તમને પૂછું ઘરવાળા શબ્દનો શું અર્થ થાય, તમને એનો શબ્દનો અર્થ ખબર હોય ને। એમાં દાસ શબ્દનો શું અર્થ થાય એ હું પૂછી રહી છું। जनरली बताओ दास शब्दનો શું અર્થ થાય? કોણ बताओ? सेवक। देखा, ये रॉन्ग। सेवक और दास में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही थी, मैं आप लोगों की तफावत आपको बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए, आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए ही बताना चाह रही थी कि सेवक और दास में भी जमीन आसमान का फर्क है। नो डाउट हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पर हम सेवक भाव से सेवा नहीं करते हैं, हम दास्य भाव से सेवा करते हैं। सेवक किसको कहते हैं? जो अपनी ड्यूटी करता है,
उसको आपने अपॉइंट किया है कि तेरे को सुबह 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक तेरे को यहाँ द्वार पर बन के खड़े रहना है। कौन आया, किसने क्या मैसेज दिया, तेरे को मुझे बताना है। वो उसकी 4 to 4 क्या हो गई, ड्यूटी हो गई। उसको कहते हैं, हाँ पर वो उसका कुछ चार्ज नहीं लेता है, पर फिर भी उसकी ड्यूटी जो हम किसी चीज़ का रुपये लेते हैं ना, उसको जॉब कहते हैं। अगर आप कहीं जाते हो, सुबह जाते हो 7-8 बजे और फिर रात शाम को आते हो और उसके आपको महीने में सैलरी मिलती है, उसको क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। पर आप सुबह से 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक खड़े हो, ड्यूटी कर रहे हो, तो उसको जॉब नहीं, उसको क्या कहते हैं, ड्यूटी। तो वो सेवा हुई विदाउट वो चार्ज, पर वो सेवा हुई। पर सेवक और दास में क्या फर्क है? आपने सेवक कहा ना, अब सेवक और दास में क्या फर्क है, अब वो कौन बताएगा? थोड़ी सी कोशिश करते हैं, सेवक और दास में क्या फर्क है? ऐसे नहीं बैठते, ये भगवान थोड़ी सी देर होती है और किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। હવે તો ચાય પીવા મળે તો સારું, તો અમે કંઈક હજી આગળ કંઈક કહી શકીએ કે દાસ શું હોય। હવે ચાયનો કામ થઈ ગયો એટલે પગ લાંબા થવા લાગ્યા। तो दास शब्द का अर्थ कौन बता सकेगा? दास और सेवक में क्या डिफरेंस है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। दासत्व, दास में और सेवक में क्या डिफरेंस होता है? सेवक का तो मैंने आपको बताया, सिर्फ हम कर्तव्य है हमारा, हमारी ड्यूटी है और हम कर रहे हैं, उसको सेवक कहते हैं। और सेवा तो करते हैं हम, पर दासत्व भाव के साथ। दासी का मतलब ये नहीं होता है कि सेवक, दासी का मतलब ये, दासी का मतलब ये भी नहीं होता है कि गुलाम। देखो गुलाम का क्या मतलब होता है, सेवक का मतलब मैंने आपको बताया, जो ड्यूटी करता है उसको सेवक कहते हैं। गुलाम का क्या अर्थ होता है, तुम जो कहे, जो हुक्म मेरे आका, वो जैसा कहता है राजा, उसके हिसाब से उसको करना पड़ता है, गुलामी करनी पड़ती है। उसके कर्ज के तले वो दब गया, इसलिए वो कहता है कि अब तेरे को कर्ज नहीं चुका सक रहा है तो तू यहाँ रहे, मैं जैसे कहूँ वैसे कर। वैसे उसको करना पड़े, उसको क्या कहते हैं, गुलामी। करना पड़े उसको कहते हैं गुलामी। पर खुशी खुशी तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो ये जो गाना है वो खुशी से ऐसे बोलता है कि तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहोगे। तो एक जो चोर की वार्ता है, वो वार्ता प्रसंग में वो वैष्णव चोरी, उसको वैष्णव तो बन गया ठाकुर जी। फिर उनको महाप्रभु जी ने कहा तुम सब कुछ तुम्हारे बढ़िया है, पर तुम ये चोरी की आदत छोड़ दो। झूठ बोलना, चोरी करना, किसी के ऊपर हिंसा करना, ये सब चीज़ गलत होती है ना। तो ये वैष्णव को ना शोभे। तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वो हिंसा करना, स्वार्थी बनना, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो चोरी तो फिर लत है, जरूरत ना भी हो, चाहे तो तिजोरी भरी भी हो, जब तक चोरी करके वो ना खावे तब तक उसको ऐसे मजा ना आवे, उसको ऐसा व्यसन हो जाए। फिर तो उसको चोरी का व्यसन, वो कि मैं सब कुछ ठीक है, चलो मैं सेवा भी कर लूँगा ठाकुर जी की, सब कुछ चाहिए, दर्शन भी करूँगा नीति नियम से, तो चोरी तो मैं करूँगा, चोरी मैं नहीं छोड़ूंगा, चोरी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो तब ठाकुर जी, महाप्रभु जी ने उनको क्या आज्ञा करी, ठीक है तू चोरी मत छोड़, पर तू सच बोल। तेरे ने बस इतना मैं कह रहा हूँ, तेरे ने सच बोलने का, कभी इतना सा भी झूठ नहीं बोलने का। चलो ठीक है, मैं ये कोशिश करूँगा। तो वो तुरंत मान गया ना, ये चीज चोरी नहीं छोड़ पा रहा है, कोई बात नहीं। पर जैसे उन्होंने कहा तो उसने माना कि नहीं, आप मेरे गुरु हैं, आप जो कह रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही है, मेरे हित के लिए ही है। तो उन्होंने उसकी आज्ञा, महाप्रभु जी की आज्ञा मानी।
तो फिर वो जब राजा के दरबार में चोरी करने गया, उसको द्वारपालों ने रोका, फिर वापस आगे जो स्टेप थे उन्होंने रोका, सबको सब पूछे, सबको एक ही बात बोले, मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ। राजा के दरबार में क्यों आया हो? क्या कोई मीटिंग है क्या? कोई साहूकार हो, कोई बिजनेस के लिए व्यापार की डिस्कस करने? नहीं, मैं तो चोरी करने आया हूँ। उसको जरा भी ऐसे नहीं हुआ कि भाई मैं चोरी करने आया हूँ और मैं चोरी का बोल लूंगा और फिर मैं थोड़ी चोरी कर पाऊंगा। तो मेरे को भले ने राजा कहा है महाप्रभु जी ने, पर मैं तो बोल देता हूँ, जो महाप्रभु जी को थोड़ी पता चलने वाला है, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसने सच ही बोला कि मैं तो चोरी करने आया हूँ। अब कोई बिलीव करे कि चोरी करने आया और सच में ऐसे बोले कि मैं चोरी करने आया हूँ, कोई ने बिलीव नहीं किया। सबने ऐसे ही लगा कि ये तो मस्ती कर रहा है, ये तो मजाक कर रहा है, ये सच में कोई राजा का कोई खास यारा दोस्त होगा। सबने उसको जाना दिया, सबने उसको जाना दिया, उसको तो बिल्कुल एंट्री फीस मिल गई। और चोरी भी जैसे चोर छुपते छुपाते करते हैं, उसके बदले उसको तो धड़ल्ले से चोरी करके रिटर्न में आवे तो भी क्या, मैं तो राजा की चोरी लूट के आ रहा हूँ, चोरी करके आ, चोरी को कोई नहीं माना। और फिर जब राजा को पता चला तो बल्कि राजा तो उल्टा खुश हुआ कि इतना ज्यादा ईमानदार, इतना ज्यादा बोला, बल्कि राजा ने उसको मंत्री बना दिया। तो तब उसको रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? गुरु आज्ञा सेवा करते गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा को आप फॉलो करो, वो आपकी गुलामी नहीं है। तुम दिन को अगर रात कहोगे कहेंगे, क्योंकि वो तो ठाकुर जी की जो लीला है वो हमको समझ में नहीं आती है। ठाकुर जी की लीला हमको समझ में नहीं आती है। ठाकुर जी रण छोड़ के भागे, वो रणछोड़ नाम पड़ गया उनका, पर वो रणछोड़ के एक तीर से 2 निशान लगाए थे उन्होंने। वो उनको युद्ध भी नहीं लड़ना था, और जिनके हाथों उस राक्षस का उद्धार होना लिखा था, उनकी निंद्रा हटाने की जरूरी थी। मुचकुंद राजा की, मुचकुंद राजा की निंद्रा नहीं हटाते तो राजकारभार कौन संभालता? तो इसलिए ठाकुर जी ने उसने कहा था, जो मेरी निंद्रा उड़ाएगा ना फिर वो तो भस्म। बराबर है। तो ठाकुर जी ने इसलिए रण छोड़ा। फिर अपन साथ भी ठाकुर जी ऐसे ही लीला करते हैं। अपन सोचते हैं हमारे साथ क्यों आऊँ, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैं तो इतना ये करता हूँ, मैंने तो कभी मेरे साथ क्यों ऐसा? उसके पीछे कुछ न कुछ लीला होती है। जब बुरा होता है तब हमको पता नहीं होता है, पर उसके बाद जो सवेरा होने वाला होता है वो गुरु को और ठाकुर जी को ही पता होता है। तो ठाकुर जी और गुरु तो अपन को ऐसे कहे ना कि कुएं में कूद जा, तो हमें कुएं में कूद भी जाने का अपन को नहीं पता है कि हम डूबने वाले हैं कि तरने वाले हैं, और नीचे और हीरा मणि है कि ठाकुर जी की निकुंज है, अपन को नहीं पता है। तो इसको कहते हैं सच्चा दासत्व के सर्वसमर्पण। सर्वसमर्पण न दिल से न दिमाग से, पूरी आत्मा अंतकरण हर चीज से सर्वसमर्पण के आप मेरे हो और मैं मेरा, सब कुछ आपका है। आप जो भी कुछ कहोगे मेरे अच्छे के लिए ही कहोगे, और मैं तो मेरा हर सांस, मैं तो जो भी कुछ करूँगी मैं तो आपके लिए ही करूँगी। मैं शायद मेरे मतलब लौकिक को भी कर रही हूँ, महाप्रभु जी ने ऐसे आज्ञा नहीं करी है कि आप संन्यास लेके जंगल में चले जाओ, बराबर है, भगवा कपड़े पहन लो। महाप्रभु जी ने कहा है गृहस्थ आश्रम धारण करो, आप अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाहन करो, पर किसी में आसक्त नहीं होना है। चाहे फिर आपका ये थोड़ा कठिन है, मैं समझ सकती हूँ, पर आपको किसी में आसक्त नहीं होना है। आपको आसक्ति सिर्फ प्रभु में, प्रभु की सेवा में, आपकी सभी इंद्रियों का सर्वसमर्पण प्रभु में ही करना है। तो ये तो दासत्व है, तो ये दासत्व भी हम नहीं कर पाएंगे अगर, तो सख्य भाव या माधुर्य भाव तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात हो गई। जब आप सर्वसमर्पण करोगे तब जाके आपको सख्य भाव भी प्राप्त हो सकता है। तो महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से ही हमको दास्य भाव प्राप्त है और सख्य भाव। तो गोपियों को सख्य भाव, माधुर्य भाव। तो लास्ट में ये 2 और 5 मिनट का वचनामृत सख्य भाव का भी अपन करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और पूरा मन में, हृदय में उतारिए। दास्य भाव का मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अब सख्य भाव क्या, माधुर्य भाव क्या होता है? तो देखिए वैष्णव, जो प्रेम लक्षण भक्ति, शुद्ध प्रेम, मैंने अभी 2 दिन पहले ही इतना सुंदर प्रसंग YouTube पे मैंने सुना था कि ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार धारण किया।
ठाकुर जी तो ऐसे ही कितने मनमोहन, कितने सुंदर है। तो जब पुरुष रूप में प्रभु इतने सुंदर है, तो प्रभु स्त्री तो ठाकुर जी की खुद की बनाई हुई रचना जो है, ठाकुर जी की खुद की बनाई हुई रचना की उत्कृष्ट सबसे सुंदर जो वस्तु है वो स्त्री है। सबसे सुंदर लावण्य, उसमें भी माँ, मातृत्व। तो ठाकुर जी तो स्त्री रूप में कैसे फिर लगते होंगे? तो मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी ने धारण किया तो देवता खुद शंकर भगवान जो वैरागी है, जिनको अपने वैरागी होने पर भी घमंड था कि मेरे को काम छू नहीं सकता है, खुद कामदेव, वो लोग भी परास्त हो गए। इतने सुंदर मोहिनी अवतार में ठाकुर जी लगे। पर तब जो के राधा जी के जो पिताजी है वृषभान जी, उनको ये बात थोड़ी जमी नहीं। उनको ये लगा कि ठाकुर जी मोहिनी अवतार में सबके ऊपर काम छा गया, तो मुझे तो ठाकुर जी का एक ऐसा रूप चाहिए, और वो भी इतने सुंदर प्रभु। तो मुझे हे प्रभु आप पुत्री रूप में चाहिए। आप लेडीज रूप में मुझे दिखे, मोहिनी अवतार मतलब आपने स्त्री रूप धारण किया, तो आप मुझे स्त्री रूप में, पुत्री रूप में चाहिए। पर आप मुझे पुत्री रूप में कैसे चाहिए? आपको सबको आपके दर्शन करके काम भाव क्यों ही जागा? इतने सुंदर के स्त्री क्यों देखते? स्त्री में तो होता ही है, स्वाभाविक है, और वो भी ठाकुर जी मोहिनी अवतार। वो नहीं, मुझे तो आपका ये काम रहित, काम का इतना भी अंश ना हो, ऐसा आपका स्त्री चाहिए। वो कौन? वो राधे। ठाकुर जी और स्वामी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी की आत्मा है स्वामी जी। तो राधा जी जो है, स्वामी जी जो है, उनका वो प्रेम की देवी है। उनके स्वरूप में आपको काम नहीं दिखेगा, उनके स्वरूप में आपको प्रेम, वो भी शुद्ध निष्काम प्रेम दिखेगा। तो जहाँ निष्काम प्रेम है वो है माधुर्य भाव। तो हर गोपी, हर व्रज नारी वो राधा जी की ही सखी है। तो उन सब में ठाकुर जी के लिए माधुर्य भाव था। सख्य भाव मतलब आजकल ये जो अब मैं क्या बोलूं, वो सख्य भाव नहीं, बराबर है। सख्य भाव मतलब तो जिसमें काम का कोई अंश ही नहीं है, जिसमें तो आत्मा से आत्मा का मिलन है, जिसमें तो जब सिर्फ दर्शन करें, दर्शन तो क्या सिर्फ ठाकुर जी का, कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का नाम तो क्या सिर्फ कृष्ण के नाम की सिर्फ कृष्ण के नाम का ऐसा अपन को मन में जगे कृष्ण, सिर्फ इसमें ही आंसू आ जावे, उसमें ही विरह के आंसू आ जावे। कि ठाकुर जी को, राधा जी को एक बार एक सखी ने पूछा कि कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन हमें करो ना। देखो गोपियों ने तो फिर भी किया, बरहा पीड़म नटवर वधु, पीला पीताम्बर है, वरमाला धरी हुई है सुंदर। पर जब राधा जी से पूछा कि कृष्ण के स्वरूप का वर्णन हमें आप करिए, आपसे ज्यादा कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है? राधा जी ने, मैं कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो जब कृष्ण के दर्शन करती हूँ तो मैं दर्शन कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं दर्शन करते ही मेरी आंखों में से अश्रु ही इतने आने लगते हैं कि मैं कृष्ण के दर्शन ही नहीं कर पाती हूँ। दर्शन कर पाऊँ तो मैं दर्शन का वर्णन करूँ ना। तो ये है माधुर्य भाव, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके तक हम पहुँचेंगे कैसे? तो ये जो आजकल के जनरेशन, हम तो लीला के जीव और हम तो सख्य भाव, ये सब लूज टॉकिंग, आई हेट ऑल दिस लूज टॉकिंग। तो इन सब से वैष्णव दूर रहिए, और ये सब आप लोग कृपा करके ना विचारिए। नो डाउट हम सब लीला के जीव हैं, हम सब ठाकुर जी के ही हैं, पर हमारी कोई कैटेगरी की कैपेसिटी हो सकती है किसी जन्म में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती है, पर हम लोग नेक्स्ट दो में आ गए हैं। हमें
प्रयास करना है। हमें ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाना है कि हम तो लीला के जीव है, हम तो ये, आप वो शक्ति है, आप, मैंने तो ये सब बहुत, ये सब क्या, ये मैं सब पुष्टि मार्ग को न्यूसेंस बना के रख दिया है। बहुत पुष्टि मार्ग का ये सब चीज़ों की वजह से बहुत अर्थ का अनर्थ, वो कहते हैं ना, अधूरो घड़ो छलका है। तो इसलिए मैं आज वसंत के दिनों का आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि पहले हम दासत्व के भाव तक तो पहुँच जाए, फिर सच्चे भाव को का ठाकुर जी की, महाप्रभु जी की, गोसाई जी की कहानी से किसी जन्म में पहुँच लेंगे, अगर कृपा हुई तो जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है, आशा करती हूँ आप लोगों के हृदय में उतरा होगा, आप लोग समझे होंगे वैष्णव हो, और आज के सुंदर दिन का हम लोग आनंद ले सके, वचनामृत को हृदयारूढ़ कर सके, जीवन में उतार सके। और सेवा तो लकीर नहीं, तो हम लोग थोड़ी बहुत जो भी कोशिश करके सेवा हम भाव से करें वैष्णव। तो ठीक है वैष्णव, विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव खूब खूब आशीर्वाद।